بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے جو اس روئے زمین پر پہلا گھر اللہ کا تعمیر ہوا وہ ہے کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس کی تعمیر تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن بعد میں حالات کے ساتھ ساتھ طوفان نوح کے ساتھ سیلاب کی وجہ سے نشانات مٹ چکے تھے۔ پھر نئے سرے سے اس کی تعمیر کے لیے اللہ رب العزت نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو نشاندہی کی گئی کہ یہ ہیں اس کی بنیادیں، ان بنیادوں پر تم نے اللہ کا گھر اب نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبۃ اللہ کے لیے جگہ مقرر کر دی، اللہ تشرک بی شیئا، تو یہ گھر بنانے کا مقصد کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنانے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیجئے۔ اس کو لوگوں کے لیے تیار کر کے اس کو پاک اور صاف رکھیں تاکہ لوگ دنیا سے آئیں، دنیا کے کناروں سے، اور یہاں آ کر اس گھر کا طواف بھی کریں، قیام بھی کریں اور رکوع و سجود بھی کریں، اور اللہ رب العزت اکیلے کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ کے گھروں کی تعمیر کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा, और बेशक ये मस्जिदें अल्लाह की हैं, अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो, किसी और की इबादत ना करो। तो बुनियादी तौर पर तो अल्लाह के घर काबातुल्लाह और फिर क़यामत तक बनने वाली मसाजिद का मकसद यही है कि इनमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ लोग फिर रब की तौहीद के अंदर शिरक की मिलावट और आमेज़श करना शुरू हो गए, और दुनिया के खित्तों में इस वक्त जहां मसाजिद की तादाद लाखों में हो सकती है, उसके साथ साथ मज़ारात और कब्रों की पूजा और उनकी तादाद भी जो है वो गिनती से बाहर है। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में इसकी इतनी बड़ी तादाद हजारों की तादाद में है कि जो बाकायदा तौर पर महकमा औकाफ हुकूमत के तहत चल रहे हैं और जो शिरक के अड्डे बने हुए हैं। उनमें से ये पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से पहले सिंध, बदीन और ठट्ठा के इलाके में एक मज़ार के जहां 9 और 10 ज़ुल्हज को जहां अल्लाह के घर बैतुल्लाह का हज होता है, पूरी दुनिया से लोग हज के लिए तशरीफ लाते हैं। इस सिंध के मज़ार पर भी लोगों ने, वहां के मुजावरों ने ऐलान कर दिया कि जो यहां आएगा वो भी हाजी हो जाएगा, और उन्होंने आकर ये काम शुरू कर दिया कि यहां आकर भी 9 और 10 को लोग वहां जाने की बजाय यहां आए। ये बहुत पहले अबरा भी काम कर चुका था यमन के अंदर, जिसने काबातुल्लाह के मुकाबले में यमन के अंदर एक घर बनाया था बड़ा बुलंदो बाला, उसकी बिल्डिंग और इमारत, ताकि लोग मक्का ना जाएं और यहां आए। लेकिन एक शख्स आकर उसके अंदर नजासत फैलाता है, उसको गुस्सा आया कि यहां तो दुनिया से आता ही कोई नहीं, वहां हर कोई जाता है। फिर उसने इरादा किया कि काबातुल्लाह को गिरा दिया जाए, और वो हाथियों का एक लश्कर और फौज लेकर आया काबातुल्लाह को गिराने के लिए। और मिना में जहां जाकर हाजी ठहरते हैं उसके मुत्तसिल ही साथ वादिये मुहस्सर है, वहां आकर उसने क़याम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से परिंदों के जरिए कैंकरियां मारकर उसके हाथी भी तबाह हो गए, अबरा और उसकी फौज को भी अल्लाह ने निस्तो नाबूद कर दिया, जिसका तज़किरा सूरतुल फील में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कुछ ही देर पहले का वाकया है। उसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। उसको आमुल फील यानी हाथियों वाला साल भी कहा जाता है। तो इसी तरह यहां सिंध में भी उस दौर में लोगों ने, अहले इस्लाम ने, उलमाए किराम ने, अहले तौहीद ने एहतजाज किया। तो उस दौर का जो वजीर आला था उसने और उसकी कबीना ने पाबंदी लगा दी कि यहां ये बंद रहा करेगा, आइंदा सालों में इन दिनों में इस पर पाबंदी होगी। वो पाबंदी चलती आ रही थी। 4-5 साल पहले भी कोशिश की गई, वहां कुछ लोग दाखिल हो गए ताकि हम 9 और 10 ज़ुल्हज को वहां लोग हज करें और हम यहां करें। फिर लोगों ने एहतजाज किया और उसके बाद इस साल फिर ऐसा काम हुआ। अफसोस है हमें इस बात पर कि जहां चाहिए तो यह था कि उस पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी जाती। हमारे पाकिस्तान के मारूफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, जिनको हम एहतराम के साथ पुकारते और बुलाते हैं, और हम ये समझते थे कि ये बरेलवी मकतबा फिक्र में एतदाल वाले हैं और मुनासिब गुफ्तगू करते हैं। एक लंबा अरसा तक रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये उर्स जो है ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उसको लोगों के लिए खोल दिया जाए। क्या तुम काबातुल्लाह के मुकाबले में यहां लोगों को हज करवाना चाहते हो? क्या तुम बैतुल्लाह के मुकाबले में यहां शिरक के अड्डों को आबाद करना चाहते हो? और ये जो गुज़श्ता अबूरी हुकूमत थी उसमें अरबों रुपया सर्फ किया गया। ये लाहौर के मज़ारात में चूंकि
उस दौर का वजीर आला वो नलायक किस्म का शख्स था कि जिसने मज़ारात को आबाद करने और इस बहाने उसने अपने ईमान बाड़ों पर भी वो बारगाहों जो है उन पर भी उसने करोड़ों रुपया खर्च करके उनको आबाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के मुकाबले में जहां भी शिरक को बुलंद करने वाले होंगे उसके मुकाबले में रब की तौहीद का परचम बुलंद करने वाले भी रब की तौहीद का प्रचार करते रहेंगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह को तामीर किया और फिर अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर दीजिए लोग हज के लिए आए, और लोग हज के लिए आए। और आज के इस दौर में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी गलत अंदाज में पेश करके एक बहुत बड़ा फितना जो है वो नए सिरे से अपना सर उठा रहा है। सन 2020 की बात है, अगस्त 2020 में यही जो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश दहशतगर्द ट्रंप है, इसने अपने दामाद जो कि एक यहूदी है उसके कहने पर एक मुआहदा जिसे इब्राहिमी मुआहदे का नाम दिया, वो एक मुआहदा उसने करवाया। उसमें बुनियादी तौर पर इसराइल और दूसरी तरफ ये अबू धाबी, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन जो है इन्होंने दस्तखत किए। ये इब्राहिमी मुआहदा मकसद क्या था? कहते लगे कि यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, ये तीनों सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में तीनों मज़ाहब आए हैं, लिहाजा इन तीनों मज़ाहब को जमा कर दिया जाए, इनको भाई भाई बना दिया जाए और इनको इकट्ठा कर दिया जाए और मुल्कों के दरमियान मुआहदे करके इस मुआहदे को तस्लीम करें और मुल्कों को लालच दिया कि तुम्हारी माईशत जो है इससे परवान चढ़ेगी और सकाफत परवान चढ़ेगी और आपस में ताल्लुकात बेहतरीन हो जाएंगे और फिर इसके नतीजे में हम आहंगी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी होगी। वहदत अदियान का नारा बुलंद किया कि एक ही ये दीन है जिसमें यहूदी भी हो, ईसाई भी हो और मुसलमान भी हो। अबू धाबी में 2023 में इसके लिए एक इमारत भी बनाई गई कि जहां एक ही छत के नीचे मुसलमान भी इबादत करें, यहूदी भी करें, ईसाई भी करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चूंकि यहूदी कहते थे हम दीन इब्राहिम पर हैं, ईसाई नजरान के कहते थे हम भी इब्राहिमी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, मुशरिकीन मक्का भी कहते थे हम भी दीन इब्राहिम पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में उन सब का रद्द कर दिया। फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना मुशरिकीन मक्का में से थे, बल्कि वो तो वाहिद एक अल्लाह का प्रचार करने वाले, एक रब की तौहीद की दावत देने वाले, इन बुतों को तोड़ने और काटने वाले एक रब की इबादत करने वाले थे। तो सन 2023 में ये अबू धाबी में काम शुरू हुआ, बुनियादी तौर पर भी इन्होंने दस्तखत किए थे। उसके बाद मराकश और सूडान भी उस मुआहदे में शामिल हुए। उस मौके पर भी ईद के खुतबे में मैंने इस फितने का जिक्र किया था। ये अब ट्रंप का दोबारा दौर आया, अब दोबारा फिर गुज़श्ता दिनों उसने नाम लिए बगैर 8 मुल्कों का जिक्र किया, जिनमें मिस्र, तुर्की, सऊदिया और पाकिस्तान जो है इनको कहा गया कि तुम भी इस मुआहदे को तस्लीम करो। अल्लाह का शुक्र है इस मौके पर सऊदिया ने भी वाज़े तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया कि हम इस मुआहदे को तस्लीम नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भी वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते, ये गलत है। इससे जहां इसराइल के साथ दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात इस्तेमाल करके फलस्तीन को जालिमाना तौर पर खत्म करने का मंसूबा है, उसके साथ साथ हक और बातिल को खलत मलत करके लोगों के सामने एक दीन का
ملغوبہ جو ہے وہ پیش کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی دین ہو سب رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، وہ یہودیت ہو، وہ نصرانیت ہو، وہ مشرکین مکہ کے عقائد ہو، اللہ کہتے ہیں وہ خسارے میں ہوگا اور اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی فرد، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ میرے بارے میں سن لے اور جو میں دین اسلام لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھ لو، جب ابو طالب کے پاس قریش مکہ سرداران قریش آئے تھے، آ کر کہا تھا اے سردار ابو طالب، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، مل جل کر آپس میں رہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمارے معبودوں کا رد نہ کرے، ان کو برا نہ کہے، آپس میں مل جل کر رہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، ہم اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ساتھ ان کو بھی چلاتے رہیں، یہ کاروبار بھی ہمارا بند نہ ہو۔ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے قرآن کی سورہ نازل کر دی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے میرے نبی کہہ دیجئے اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا، تم گمراہی پر ہو میں حق پر ہوں، تم کفر پر ہو میں اسلام پر ہوں، تم شرک پر ہو میں توحید پر ہوں، تمہارا اور میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک کی ملاوٹ اور آمیزش کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ٹرمپ کے اس معاہدے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں، ہم تمہارے اس ملغوبے کو اور دینوں کے خلط ملط کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلانے کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک باقی اسلامی ممالک کا، بالخصوص اس میں جو بڑے ہیں پاکستان اور سعودیہ، ان دونوں نے اس کا انکار کیا ہے، اللہ ان کو استقامت بھی دے کہ یہ حق پر قائم بھی رہیں۔ اس دفعہ کا خطبہ حج جو ہے، امام مسجد نبوی جو مسجد نبوی کے بہت پرانے امام ہیں، جنہوں نے تقریباً کوئی 45 سال سے مسجد نبوی کے امام اور خطیب چلے آ رہے ہیں، شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی حافظہ اللہ، ان کا جو حج کا خطبہ تھا تقریباً 14 منٹ کا خطبہ تھا، اس میں سے آدھے سے زیادہ توحید پر تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا، سورہ حج کی توحید والی بہت ساری آیات انہوں نے تلاوت کی، جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بھی پڑھی اور یہ آیت بھی پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب اس کو پرندے نوچ کر لے جائیں یا ہوا میں وہ پلٹے کھاتا ہوا
उड़ता फिरे, अब उसका कोई जो है ठिकाना नहीं है। मुशरिक का यही अंजाम है कि वो भटकता फिरता है, उसका कोई अंजाम और कोई उसका ठिकाना नहीं होता। ये आयत भी तिलावत की और बहुत सारी आयात तिलावत करने के बाद उन्होंने कहा, लोगों, हज पर जो लोग आते हैं इनका मकसद ये होता है कि वो यहां आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद पर लब्बैक कहें और एक खालिस, एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करने का अहद करें, अज़म करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। यही खुतबा हज का खुलासा भी था, एक तौहीद। और फिर आज भी ममलकत सऊदी अरब में पूरे खित्ते में एक भी मजार आपको नहीं मिलेगा, एक भी पक्की कब्र और कब्र के ऊपर इस तरह मजारों वाली शक्ल आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी कब्रें हैं सहाबा इकराम की, सहाबियात की, अहले बैत की, किसी कब्र की निशानदेही भी नहीं होती, चूंकि वो बकी कब्रिस्तान में मौजूद है। मक्का से मदीना जाएं तो थोड़ा ही आगे जाते हुए रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया मोहतरमा की कब्र भी है, उसके गिर्द उन्होंने उसको बंद किया हुआ है, वहां कब्र तक कोई नहीं जा सकता, लेकिन कब्र अंदर कच्ची है। हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए ओहद की कब्रें भी ओहद पहाड़ के दामन में मौजूद हैं, वो भी कच्ची कब्रें हैं, किसी कब्र पर कोई गुंबद और मजार नहीं है। आज सऊदी अरब में अगर अल्लाह की बरकत है, बहुत सारी उनकी कमियों और कुताहियों के बावजूद, तो बहुत बड़ी जो खूबी है वो रब की तौहीद को इस्तकामत के साथ थामे हुए हैं। हमारे मुल्क में आज हजारों नहीं बल्कि लाखों तक मजारों की तादाद पहुंच जाती है। हर गली मोहल्ला, हर बस्ती, हर शहर, हर आबादी, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एक नया मजार। ये कहते हैं इसके बगैर काम चलता नहीं, ये बुजुर्गों के पास ना जाएं, हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, औलादें कैसे मिलेंगी, रिज्क कैसे मिलेगा। और वहां के रहने वालों के पास एक भी मजार नहीं है, उनका कैसे चलता है। तुम फूलों की चादरें जाकर ना चढ़ाओ, तुम्हारा गुजारा नहीं होता, लेकिन वहां तो वो कब्रें हैं कि पूरी कायनात में उस तरह की मुकद्दस कब्रें नहीं है। और फिर वो शाह फैसल राहिमहुल्लाह, जो शाह अब्दुल अजीज जो इस दौर के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इस वक्त सऊदीया के हुक्मरान हैं, इनके बड़े भाई थे शाह फैसल राहिमहुल्लाह। वो बात मुझे फिर याद आई कि पाकिस्तान के दौरे में आए, भुट्टो का दौर था, वो कायदे आजम की कब्र पर कराची भी गए, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह ये तेरा बंदा, इसने अच्छा काम किया, मुसलमानों के लिए एक अलग ममलकत बनाई, अल्लाह इसकी कुर्बानियों को, इसकी मेहनतों को कबूल कर। भुट्टो साहब ने फूलों की चादर पकड़ाई, कहा ये ले। उन्होंने कहा इसको क्या करना है, कहा ये कब्र के ऊपर चढ़ा दें। शाह फैसल राहिमहुल्लाह ने कहा था अगर किसी कब्र पर चादर चढ़ानी जायज होती, मदीने में मेरे पास वो कब्र है कि कायनात में उस जैसी कब्र नहीं है। जब हम उस कब्र पर फूलों की चादर नहीं चढ़ाते, फिर कायनात में किसी और कब्र पर भी फूलों की चादर नहीं चढ़ा सकते। और आज भी आप जाएं, यहां से जाने वाले बहके हुए गलत अकायद वाले लोग वहां जाकर कोशिश करते हैं, हालांकि 3-4 दीवारें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाहर, एक 4 दीवारी, फिर दूसरी चूंकि आपने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसन युबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को मेला गाना बनाना कि यहां लोग आकर मेला लगाएं और मेरी कब्र पर आकर लोग यहां दुआएं मांगे और यहां आकर सजदे करने शुरू कर दें। अल्लाह ने कबूल की, एक 4 दीवारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 4 दीवारियों के बाहर जाली जो लगी हुई थी, जाली तो लोहे की है, ये लोग बाज नहीं आते थे, उसको जाकर जाली को चूमते, हाथ लगाते, जाए नमाज लगाते, कपड़ा लगाते, ये जाली के साथ लग जाएगा तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। अब उन्होंने जाली से 4-5 फुट दूर बैरियर लगा दिया है कि जाली को भी कोई ना लगाए हाथ। और फिर जब कब्र की तरफ
कोई मुंह करके दुआ करना चाहता है वो उसका रुख फेर देते हैं वहां खड़े हुए मुतव्वे और शुरते पुलिस वाले के काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआ करो। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र यकीनन पूरी कायनात की कब्रों से अफजल है, लेकिन इबादत और दुआ सिर्फ एक अल्लाह की है और उसी अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं। मैदान अरफात में खुतबा हुआ, उसके बाद 10 जुल्हज से लेकर 12 जुल्हज तक मस्जिद खैफ जो मिना में बहुत बड़ी मस्जिद है जहां हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं, जो सिर्फ हज के दिनों में खुलती है। हज के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में भी आता है, आपने गालिबन 70 अंबिया का जिक्र किया कि उन नबियों ने इस जगह पर नमाज पढ़ी है। हज के लिए जब आते थे अंबिया आते थे हज के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत बड़ी अंबिया की तादाद दुनिया में आती रही। उस जगह मस्जिद खैफ बनी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और बाद में भी वो जगह मस्जिद खैफ के तौर पर आज भी मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि हज के दिनों में वहां रहा जाए अपने खेमे में, हालांकि खाना और बहुत सारी सहूलियात मौजूद होती हैं, यहां वो चीजें मौजूद नहीं होती, बाहर से खुद खरीदना पड़ता है। लेकिन हज के मौका पर वहां मस्जिद में रहकर 5 जमात नमाजें और 5 नमाजों के बाद वहां वो दरस देते हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमाए किराम आते हैं, यकीन जाने अरबी जबान में दरस देते थे। हमारे यहाँ के लोगों को चूंकि समझ नहीं आती, हर जो दरस था वो तौहीद पर था। और लोगों तौहीद को इख्तियार करो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो। और कुरान की ये आयत तो बार बार मैंने वहां अपने कानों से सुनी। जो भी दरस देने वाला आता ये आयत जरूर पढ़ा करता था, वाइज़ा सअला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह कहते हैं जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक पूछे, इनको कह दे कि मैं करीब हूं और मुझे पुकारो। दरमियान में वास्ते की जरूरत नहीं, किसी वसीले की जरूरत नहीं, एक रब की तौहीद का इकरार कर लो। और मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी और कामरानी इसी में है कि शिरक को छोड़ दो, शिरक की मिलावट ना करो। लेकिन क्या किया जाए, इन बेचारों को वहां समझ नहीं आती। ये यहां आकर फिर वही काम जो यहां करते थे वहां भी वही काम। और फिर तलबिया क्या है, हज और उम्रे के जितने मुकामात हैं, बंदा अभी उम्रे का इहराम बांधता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूं। फिर तलबिया पढ़ना शुरू कर देता है, लब्बैक मैं हाजिर हूं। बंदा गुलाम हाजिर है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, अल्लाह कोई और दाता नहीं, या अल्लाह कोई और खालिक मालिक, हाज तरवा मुश्किल कुशा, गंज बख्श, गौसे आजम, दस्तगीर, लजपाल, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, अल्लाह कोई नहीं, कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा, सारी की सारी तारीफें, वन नेमता, सारी नेमतें, लका वल मुल्क तेरी है, बादशाहत भी तेरी है, ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया गूंजता है बैतुल्लाह में पहुंचने तक। अल्लाह के रसूल भी बुलंद आवाज से पढ़ते थे और आज भी एहराम बांधने वाले समझदार और अक्लमंद तालीम याफ्ता लोग इसको पढ़ते हैं। हज के मौका पर भी यही तलबिया बार बार मैदान अरफात में तो तलबिया भैया का आवाज गूंजता है। मस्जिद निमरा में जहां हज का खुतबा होता है वहां सामने हमने इमाम साहब के बैठकर खुतबा सुना तो तलबिया उससे पहले सुबह से ही लेकर वहां कोई 8-9 बजे से लेकर गूंज रहा था तलबिया। और काश लोगों तुम्हें तलबिये की समझ आ जाए, अगर हज करके वापस आकर फिर तुमने यही काम करना है, कब्रों की पूजा करनी है, फिर तलबिये का क्या मकसद, तुमने इसको क्या बना दिया। और फिर जब जाकर तवाफ करते हैं उसमें भी रब्बाना आतिना फिद दुनिया, रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार। कुरान की ये दुआ जो है अल्लाह के रसूल कसरत के साथ पढ़ते थे और वहां भी आप पढ़ते थे, आज भी तवाफ करने वाले पढ़ते हैं। इस दुआ में कोई वास्ता नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई तुफैल नहीं, किसी के सदके नहीं। रब्बाना, ए हमारे रब, हमारी दुनिया में भी हमें खैर दे दे, हमारी आखिरत में भी भलाई दे दे, हमें आग के अजाब से बचा ले। इसके बाद
7 चक्कर तवाफ के पूरे हुए, साई के लिए सफा पर जाते हुए 3 मरतबा आप कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, फिर आप दुआ पढ़ा करते थे 3 मरतबा सफा पर पढ़ते, 3 मरतबा मरवा पर पढ़ते, हर चक्कर के आगाज में ये दुआ करते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कोई इलाह नहीं है मगर वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। लहुल हम्दु व लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, बादशाहत भी उसी की है, तारीफें भी सारी उसी की हैं और वो हर चीज पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, नहीं कोई इलाह मगर वो अकेला है। अंजाज़ा वादा, जिसने अपना वादा पूरा किया, व नसरा अब्दा, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, व हज़मल अहज़ाब वहदा, अल्लाह अकेले ने तमाम लश्करों को नाकाम कर दिया, शिकस्त दे दी। अल्लाह के रसूल ये कलिमात वहां पढ़ते हैं। आज भी हर हज उमरा करने वाला जो सीख कर जाता है वहां खड़े होकर सफा पर भी मरवा पर भी बार बार ये पढ़ता है। और फिर जब मैदान अराफात में जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिरमिज़ी में हदीस है, आप फरमाते हैं अफ़ज़लुद दुआ दुआ अराफा व खैरु मा कुल्तुहु अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ली यौम अराफा। लोगों, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है और मैंने जो कहा है और मुझसे पहले नबियों ने जो अराफात के दिन रब से मांगा है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तेरा कोई इलाह नहीं अल्लाह, तू अकेला है, कोई तेरा शरीक नहीं है, कोई और इलाह नहीं, तू अकेला मेरा इलाह है। अल्लाह, सारी तारीफें और बादशाह तेरी हैं और वही अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कोई और नहीं है। ये तो वहां बार बार कहने का मौका मिलता है। और हज के बाद जो गुज़श्ता जुमा था, मस्जिद नबवी में पढ़ने का मौका मिला। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर हाफिज़हुल्लाह ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उन्होंने कमाल की बातें की। उनमें से भी मैं चंद बातें जिक्र करना चाहता हूं, शायद किसी को समझ आ जाए। वो कहने लगे, ओ लोगों, हज करने की तुम्हें मुबारक हो। मैदाने अराफात में जाने वालों को, मुज़दलिफा में रातें गुजारने वालों को, मिना में रहने वालों को, जमरात को कैंकरियां मारने वालों को मुबारक हो। फिर कहने लगे, हज के बाद तुमने अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया तो फिर हज का मकसद क्या है? और फिर हज में आने का क्या फायदा? इसने 8 हज किए, इसने 15 हज किए, इसने 20 हज किए और करता क्या है? मजार पे जाकर वहां अपने हाथों को फैला के मुर्दों से मांगने वाला। क्या तेरे हज का मकसद? उनके अल्फाज में जिक्र करता हूं उर्दू तर्जमे के साथ। कहने लगे, उस शख्स ने क्या हज किया जो वापसी पर मुर्दों से फरियाद करे। ये इमाम मस्जिद नबवी ने पिछले खुतबे में, और बड़ा उनका जामे खुतबा था। कहने लगे, उस शख्स ने क्या हज किया जो वापसी पर मुर्दों से फरियाद करे, कब्रों और मज़ारात के गिर्द तवाफ करे, जिन्नों और शयातीन के नाम पर जानवर ज़िबा करे, कब्र वालों को अपने और रब्बुल आलमीन के दरमियान वास्ता बनाए। फिर वो कहने लगे, उस शख्स के हज की क्या कदर व कीमत रह जाती है जो हज के बाद जादूगरों और शोबदाबाजों के पास जाए, नजूमियों की बातों को सच माने, बदशगुनी के अकायद इख्तियार करे, तावीज लटकाए और बिदत के इन कभी और मुनकर कामों में मुब्तला हो जाए। फिर कहने लगे, उस शख्स के हज का असर कहां गया जो हज के बाद नमाजें जाया करे, ज़कात ना दे, रिश्वत और सूद खाए, मंशियात और नशावर अशिया इस्तेमाल करे, रिश्तेदारियों को तोड़े, गुनाहों और हलाकत खेज जराइम में डूब जाए। ये उनके खुतबा जुमा का एक मुख्तसर सा जो जिक्र मैंने किया है। इसमें बड़ी चीजें आ जाती हैं। आज हज और उमरा करने वालों को कि यहाँ के लोगों को वहां अरबी की समझ नहीं आती, उन्होंने दुनिया की 10 बड़ी जबानें जो जिसमें उर्दू भी शामिल है उसके तर्जमे का भी एहतमाम किया हुआ है।
کوئی ہینڈ فری لگا کر ساتھ ساتھ اردو میں سننا چاہے تو سن سکتا ہے، اور لکھا ہوا ترجمہ بھی پورا خطبہ مل جاتا ہے، لیکن کاش کوئی سنے تو صحیح، اور کوئی سمجھے تو صحیح، کوئی غور کرے تو صحیح۔ صرف یہی نہیں، عقیدت میں حج اور عمرہ کیا اور اس کے بعد آزاد ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، نماز کبھی پڑھی نہیں، نماز قائم باتی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، نہ بھی پڑھے کام چل جاتا ہے۔ کیا حج اور عمرہ صرف فیشن کے طور پر ہے؟ یقیناً اس کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر کے گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے، اس طرح کر دیتا ہے۔ لیکن کس کو؟ جس کا عقیدہ توحید ہے، توحید والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شرک کی امیزش والا جو شرک کرتا ہے، حج کرتا ہے، واپس آ کر پھر شرک کرتا ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کو حج اور عمرے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حج اور عمرے کے ساتھ اپنے اعمال کو بدلے۔ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ اسی حج کی بات ہے، کہتے ہیں میں نے ایک جائز کام کے لیے ایک فرد لینی تھی، بڑی پراپرٹی کی فرد تھی، کہتے ہیں 16 لاکھ روپیہ میں نے دیا ہے پٹواری کو رشوت، اور پٹواری صاحب 16 لاکھ لے کر حج پر چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا فائدہ اس حج کا کہ پورا ایک بندے سے ہی حج ہو گیا۔ تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، آپ کے عقائد بھی بدلیں، آپ کے اعمال بھی بدلیں، آپ کے اندر تبدیلی آئے، عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اختیار کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدمی لائیں اور ان کو عقیدہ توحید سکھائیں۔ میں نے کہا کہ سعودی عرب میں بہت ساری کمیوں اور کمزوریوں کے باوجود ان کو بنیادی طور پر پہلے دن ہی سکول جانے کے ساتھ عقیدہ توحید سکھایا جاتا ہے۔ ایک پولیس والا وہاں، اس کو میں نے ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہیے، آدھی میں نے پڑھی، آگے اس نے پوری کر دی۔ اب ایک عام بندہ ہے، وہ دنیا دار، لیکن چونکہ ان کو بنیادی طور پر توحید کی، سنت کی، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری کمی ہے، ان لوگوں کو پھر بھی کچھ شعور ہوتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، جو دور ہیں یا جن کو لوگ دور رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے قریب نہیں جانا، ان بیچاروں کو کسی بات کا علم ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اپنی توحید پر گامزن رہنے کی اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔